everyone, how you people are doing? This is Nivedita from NST Coaching, right? And this is our preparations for your seated December 2021 exam, which is going to be online from this December onwards. So you don't have to worry, we have already started. I've already given you the videos on how it is going to be in your online exams, and we have already started the batches for your online and as well as your offline batches in NST Coaching. And to know what this topic is all about, and we have already I've already given you the video of what is latitude. This is your longitude topic, and to know it full you have to watch the video till the end. And before that, before watching the video, before going to the topic, what you people have to do, you have to subscribe the channel with your red bell icon, and of course you have to like and share the channel so that you can get more and more videos in time. Right now, let's begin with our topic, that is your longitude. Right, and before this topic I have already discussed with you latitude. Latitude and longitude, are they important? Yes, they are very important for anyone, and you must know what are latitude and longitudes. But only knowing latitude is not going to help you, because latitude is not going to tell you where the place is in a earth. If you want to know the place in the earth, you have to know लॉन्गिट्यूड. आपको लॉन्गिट्यूड जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यही आपको लोकेट करके बताएगा कि जगह कहाँ पर है अर्थ में. मैप में अगर आप किसी जगह को ढूंढना चाहते हो तो आप कैसे ढूंढोगे? विद द हेल्प ऑफ योर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, राइट. वैसे ये लॉन्गिट्यूड होता क्या है? These longitude, you can see here, this is the diagram which I have made for your reference. इस डायग्राम में आप देखेंगे ये जो लाइंस हैं, इस टाइप की जो लाइंस हैं, ये जो आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ से ऐसी लाइंस जा रही है, ठीक है. ये आप देखेंगे यहाँ से ऐसी लाइंस जा रही है. ये जो लाइंस है वर्टिकल लाइंस हैं, जो कि आपके पैरेलल है विद नॉट विद द इक्वेटर, यू कैन से. ये आपकी पैरेलल लाइंस है, रेफरेंस लाइन है. ये लॉन्गिट्यूड, इमेजिनरी लाइंस भी कह सकते हैं आप इनको, रेफरेंस लाइन है. ये आपका लॉन्गिट्यूड है, राइट. और यू कैन गिव आउट अ मोर गुड डेफिनेशन, जो कि वो क्या बोले डेफिनेशन से, these line of references are called meridian of longitude, right. ये जो line of references है ये आपके meridian of longitude है, जो कि आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं. ये लाइंस हैं, ये आपके longitudinal लाइंस हैं. और जितने all the meridians, ये क्या होता है कि जितने भी meridians हैं, all the meridians are of equal length, so it was very difficult to know the number कि कहाँ से हमें इनको स्टार्ट करना है. So what all the countries have decided, they decided कि let's have a meeting and then decide a single point, a single country from where we are going to put on this line. हम कहाँ से इस लाइन को measure up करेंगे. तो उसके लिए उन्होंने क्या लिया? उन्होंने जब आपकी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, see this is the name, this is your British Royal ऑब्जर्वेटरी. यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया, और वेर इट इज, it passes in this observatory, all the countries have come together and they have decided, this meridian, this is your 0 degree meridian, let us pass through Greenwich. This is the name of the place from where the prime meridian, that is your 0 degree, ये आपका जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री है. ये कहाँ से हो रहा है? ये ग्रीनविच से पास हो रहा है. तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लॉन्गिट्यूड का प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास हो रहा है, दैट इज योर ग्रीनविच. और ये किसने डिसाइड किया? ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने डिसाइड किया है कि ये कहाँ से होगा. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको. फिर नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब यहाँ ये जो 0 डिग्री है, इन्होंने क्या किया, पूरे अर्थ को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. दैट इज, दिस इज 0 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है. और दोनों साइड्स में जो 180 डिग्री है, ये जो वेस्ट है ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया, और ये हो गया 180 डिग्री ईस्ट. ये दो हिस्सों में आपका जो अर्थ है डिवाइड हो गया. ये बीच का जो है वो 0 डिग्री है, जिससे आपने इक्वेटर हमने किया था, इक्वेटर 0 डिग्री है. उसके बाद यहाँ ऊपर लाइन्स हो गए आपकी टॉप
ऊपर जाता है तो नॉर्थ है, नीचे आ रहा है तो साउथ है। उसी तरीके से इसके ईस्ट एंड वेस्ट है। और ये जो पैटर्न है आपका, सी ये आपका इक्वेटोरियल लाइंस की पैटर्न है, ये आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस की पैटर्न है। और ये जो पैटर्न है वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग, this intersecting point where both lines, that is your latitudinal lines and your longitudinal lines are intersecting, that is your grid pattern. What it is called? It is called as a grid. You can say this is called as grid. This intersecting both latitudinal and longitudinal is called as intersecting. I think this point is also clear कि what is grid and why it is called grid, right? Intersecting, or you can say the latitudinal and longitudinal lines where it is intersecting, that is your grid, right? For example, हम एक example लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, NCERT बुक में है, that is of डिब्रू, that is in Assam. डिब्रू जो असम में है वो कहाँ पे है, उसका अगर हम लोकेशन देखें, see this is the name, धुबरी, this is in Assam. इसका जो धुबरी का जो लोकेटिंग पॉइंट दैट इज 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, 26 डिग्री, आपको इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या, 26 डिग्री नॉर्थ, जैसे मैंने आपको बताया ये जो इक्वेटर है, अब इस इक्वेटर से 26 डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड है। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, लिखते हैं 26 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। 90 डिग्री ईस्ट, यानी कि जो आपके प्राइम मेरिडियन है उससे ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो ये है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इस प्लेस को लोकेट करने के लिए, कौन सा प्लेस है, डुबरी है असम में, इसको लोकेट करने के लिए हमने आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, एक 90 डिग्री ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका 26 डिग्री नॉर्थ। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करा, तब जाके हमने ये प्लेस लोकेट किया है आपके मैप में। This is why we are doing this grid pattern and why we are studying latitude and longitude. I think this is also clear. This example is clear with all of you. Now, let's see the next point. That is your next point. क्या बोलते हैं, जो प्राइम मेरिडियन है, आपको कैसे सी, अब प्राइम मेरिडियन पे है, हमें और एग्जाम्पल्स करने हैं तो कैसे करेंगे। आपको ये मालूम है मिड डे सन, दैट इज योर मिड डे नून, यू कैन से मिड डे सन में जो सन का पोजीशन है वो कैसा होता है। आप पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, किस तरीके से टाइम लोकेट करते थे कि मॉर्निंग टाइम में जो आपस शेडो कास्टिंग होती है, जो आपकी शेडो की कास्ट होती है वो कहाँ जाती है, राइट, ईस्ट में जाती है या वेस्ट साइड में जाती है, आगे जाती है, सामने आती है, व्हेन यू वॉक, राइट। इसी तरीके से जब आपका मिड डे सन होता है जो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस समय, ठीक है, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे जब आपके सर के ऊपर सूरज होता है जैसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, सर की जब सूरज होता है, जो आपकी जो कास्टिंग शेडो कास्ट होता है वो सबसे छोटा होता है। शेडो कास्ट आपको नजर ही नहीं आता, ऐसे आप ढूंढोगे आपको नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। यू कैन नॉट प्ले विद द शेडो, क्योंकि शेडो जो है वो आपके साथ चल रहा है, आप कहीं पे नहीं दिखेगा, आगे पीछे कहीं शेडो नजर नहीं आएगा। दैट इज योर 12 नून टाइम। क्या टाइमिंग होता है मिड डे का, दैट इज योर 12 o'clock नून टाइमिंग। तो उस समय सूरज जो है सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, और जो भी प्लेसेस हैं जो ग्रीनविच के दैट इज 0 डिग्री पे जो जितने भी प्लेसेस है पास उसके आसपास वो पूरा वो पूरा आपका मिड डे सन का टाइमिंग है, और इसका जो आप कह सकते हो 12 नून का टाइमिंग है, ठीक है। अब इसमें 12 नून जो प्राइम मेरिडियन से जब आप ईस्ट में चलते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा, जो 0 डिग्री है, दिस इज योर 0 डिग्री, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन। और जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपके मालूम है ये 180 डिग्री पूरा है ईस्ट, और ये 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। जब हम इस तरफ से जाएंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ता हुआ जाएगा। 0 डिग्री है, ये 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पे इसका मतलब जो भी है ये टाइमिंग आगे बढ़ रहा है, और ये जो है पीछे जा रहा है वेस्ट में, तो ये 1 घंटा इससे आगे चलेगा, ये पीछे चलेगा वेस्ट, ईस्ट जो है आगे जाएगा। और ये जो पूरा है अर्थ का आपको मालूम है 360 डिग्री, दैट इज योर इन 24 आवर्स 360 डिग्री है, एंड दैट इज 15 डिग्री इज योर 1 आवर टाइमिंग, 1 घंटा जो है 15 डिग्री है। ये जो आपका है ये 15 डिग्री यहाँ पे हुए क्रॉस हुआ, तो 1 घंटा और हो गया, यहाँ पे 1 आवर आगे चला गया। फिर 15 डिग्री हुए
तो 1 घंटा और चला गया, ठीक है। इस तरीके से हम ये टाइम लोकेट करते हैं। यहाँ पे 15 डिग्री हुए तो 1 घंटा पीछे जा रहा है ये 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा ये पीछे की तरफ जा रहा है वेस्ट में। इस तरीके से हम लोकेट करते हैं। और दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ये मैंने आपको बताया 360 डिग्री, 24 आवर्स, 15 डिग्री, 1 आवर। तो 1 डिग्री पे कितना होगा? 1 डिग्री विल बी योर 4 मिनट्स। 1 डिग्री जो है आपके 4 मिनट्स का कैलकुलेशन है, राइट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप कैलकुलेट करते हो इस तरीके से कैलकुलेट करो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 15 डिग्री 1 आवर, 1 डिग्री 4 मिनट, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। आपको कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ इसमें में। सी, दिस इज योर क्वेश्चन गिवन इन योर बुक, दैट इज योर एनसीईआरटी। व्हाट दे से, इंडिया इज लोकेटेड, जो इंडिया में आपका जो हमारा इंडिया है कहाँ पे लोकेटेड है? लॉन्गिट्यूडनल आप देखोगे इंडिया का जो लोकेशन है दैट इज योर 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है। ये आपका है। और ग्रीनविच से कितना टाइमिंग है? फ्रॉम ग्रीनविच 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, दैट इज 5 आवर्स 30 मिनट्स वी आर अहेड ऑफ ग्रीनविच। ग्रीनविच से हम 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चल रहे हैं, अहेड है, ठीक है। और ये जीएमटी टाइम है। सो इट विल बी 7:50। अगर मैं ये कहती हूँ कि 7:30 हो रहे हैं इंडिया में, 7:30 PM है, तो वहाँ पे कितना टाइम होगा ग्रीनविच में? या आप कह सकते हैं लंदन में कितना बज रहा होगा तभी? इन लंदन, दिस इज आवर इंडियाज टाइमिंग, ठीक है। और लंदन में कितना होगा? आप पीछे कर लीजिए, दिस विल बी योर 2 PM, ठीक है। 7:30 इन इंडिया, 2 PM इन लंदन, ये टाइमिंग है। और जो मैंने आपको इसके पहले जो टाइमिंग्स बताई थी किस तरीके से आप जो है याद रखोगे, इसमें कुछ टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट कि 15 डिग्री पे कितना हो रहा है, कितने आवर का हो रहा है, या 1 डिग्री पे कितने मिनट का हो रहा है। तो ये आपको कैलकुलेट करने में ईजी रहेगा जब आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये इंडिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया लंदन में अगर 2 PM है तो इंडिया में कितना होगा? शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने घंटे हम आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर वेस्ट का कंट्री है तो वेस्ट में तो पूरे के पूरे आपके वहाँ पे डे एंड नाइट का पूरा काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है, तो वो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स हियर। अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। I'm Nivedita, your educator, and before going or before ending this topic, do not forget this is NST coaching, and this is my number, that is your 7701995172. You can contact me on this number for any offline or online batches. You can message me on this number, right, and I'll be there to tell you about whole thing about your CTET 2021 December exam. Any help, any guidance required, you can give me a call. So this is all from Nivedita. Thank you very much.